Hello dear students, good morning to all of you. Today we have new class of which is name of chapter 3 coordinate geometry. What is coordinate geometry? Okay, before you have all having a curiosity to know what is coordinate geometry, because this is a new chapter. Before that you have never read these things. Okay, so that first what is the meaning of chapter? Okay, coordinate means स्पेसिफिक पोजीशन, मतलब कहीं पर भी स्पेसिफिक पोजीशन होती है स्पेसिफिक, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लोग कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, ठीक है। दिस कोऑर्डिनेट्स आर थ्री टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट्स आपको पता ही है, पहले भी आपने इनसे पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस and z axis. These are the three coordinates, and by through this our earth is totally on this coordinates depending, ठीक है। You know that you are using Google Earth, ठीक है, Google Maps, तो these are working on coordinate positions of coordinate position, ठीक है। स्पेसिफिक पोजीशन पे ये वर्क करते हैं। हाउ these are work, this is a another matter, but now this is not, ठीक है। Now we understand coordinate means specific position in any axis of x, z and y. This can be represented by x, y and z. These are the specific position of earth, ठीक है। तो coordinate means that specific position, okay। and geometry, what is geometry? Geo means that earth, ओके। जियो का क्या मतलब होता है? जियो का मतलब होता है अर्थ होता है, ठीक है। एंड मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। दैट मींस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ चैप्टर इन विच वी कैन फाइंड आउट द स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। अर्थ में कहीं पर भी कोई स्पेसिफिक पोजीशन होगा, उस पोजीशन को हम लोग क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। आप अपने गूगल मैप्स के बारे में जानते हैं। गूगल मैप्स इज फाइंड आउट बाय it's calculate your position by through this coordinate geometry, okay। so next our topic is, so this is a overview of chapter, okay। what is the name of chapter and what is the specific meaning of chapter name, ठीक है। तो ये okay, before to going to start our chapter we have already studied about number line, okay। नंबर लाइन के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका है। Here is only one line which is showing only the x axis, ठीक है। Here is only a one axis, it is a x, okay, it is known as x, and this diagram is also known as 1D because here is only a line, only length is there, okay, there is a no measurement of height, okay। तो in which only a x axis and there is only a number position. If you say anyone where is number 2, you can directly point out there is a number 2, ठीक है। If you asking you where is number 5 -5, you can directly position it of this position, ठीक है। तो ये होता है नंबर लाइन। and adding to one more line, okay, this one is horizontal line, ठीक है। horizontal मतलब ऐसी आड़ी रेखा, जो तिरछी आड़ी रेखा है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, ठीक है। व्हेन वी एडिंग वन मोर लाइन इनटू, ठीक है। तो ये होते हैं स्पेसिफिक पोजीशन हो गया, ठीक है। पहले हमने नंबर लाइन पढ़ा। नंबर लाइन में हमें पूछा कि वेयर इज स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ 2 -5, वी कैन डिस्क्राइब इट बाय आवर आंसर, ठीक है। हम बता सकते हैं कि नंबर लाइन में ये नंबर्स हैं वो कौन से पोजीशंस में। इससे पहले भी हमने बहुत सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट किया है ऑन द नंबर लाइंस, ठीक है। एंड आफ्टर दैट सम मोर एग्जांपल्स, you know that direction, okay, direction is known as direction of your place, you already all the students are know about the direction, ठीक है। north south west and
ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। बाय थ्रू दिस आवर वर्ल्ड इज गोइंग ऑन एनीवेयर, ठीक है। आपने वो वाला पिक्चर देखा हो ना, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, उसमें एक कंपास रखा होता है, ठीक है। वो कंपास में यही डायरेक्शन ही शो होता है, ईस्ट 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 वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। तो बाय थ्रू दिस डायरेक्शन, okay, by through this direction we can go anywhere in the world, okay. And after that something more, our colony, our places, our home is everything is positioned on these number lines, okay, these things, okay. Just like here is a one plan colonies plan, ओके ये एक कॉलोनी का प्लान है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे होम्स बने हुए हैं, ठीक है। होम नाउ हियर इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रीट, हियर स्ट्रीट 1 2 3 4 5 6 7 8 स्ट्रीट्स अलोंग द रोड वेस्ट ईस्ट एंड नॉर्थ साउथ, ठीक है। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आपके क्या हुए स्ट्रीट 1 नॉर्थ से साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में स्ट्रीट 1 3 5 7, ठीक है। अगर हम बोले नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में तो स्ट्रीट 2 4 6 8, ठीक है। दीज आर दी स्ट्रीट्स, हियर सम पीपल्स आर लिविंग देयर, ठीक है। पर्सन ए सेड आई एम लिविंग ऑन कॉलोनी, ठीक है, ऑन स्ट्रीट सेकंड, ठीक है। अगर कोई पर्सन है वो ये बोलता है कि मैं स्ट्रीट 1 पर या स्ट्रीट 2 पे रहता हूं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिन पॉइंट से सीधे हम जाएंगे इस डायरेक्शन से, ठीक है। फाइंड आउट वेयर इज स्ट्रीट 2, देयर इज स्ट्रीट 2, ठीक है। अब स्ट्रीट 2 में तो 4 हाउसेस हैं, दैट मींस हियर इज अ 1 पॉइंट, ठीक है। 1 पॉइंट क्या हो गया, फर्स्ट पॉइंट इज स्ट्रीट 1, ठीक है। एड्रेस ऑफ पर्सन ए स्ट्रीट 1, ठीक है। एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग कमिंग हियर एंड कंफ्यूजिंग व्हिच वन इज द होम ऑफ पर्सन ए, ठीक है। एंड आफ्टर दैट वी आर अगेन कॉलिंग टू दिस पर्सन एंड आस्किंग टू व्हिच वन इज योर होम नंबर, हाउस नंबर, ठीक है। आफ्टर दैट ही सेड माय हाउस नंबर इज 3 and then after we are taking from here, taking right and coming on this side and reaching on this position, ठीक है। and after that home number is 3, we are getting a 2 points, ठीक है। and finally our address is completed and we are reaching to our person A, so that is the example of this, ठीक है, first example। एंड सेकेंड एग्जाम्पल आई होप यू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। कि अगर कोई पर्सन है, अगर उसने अपना एड्रेस दिया हुआ है तो पहले वो अपना लोकेलिटी एड्रेस देता है, ठीक है। लोकेलिटी एड्रेस के बाद अपना पर्सनल एड्रेस देता है कि वो स्पेसिफिक प्लेस पे कहाँ पर रहता है और कौन से डायरेक्शन पे है ये, ठीक है। तो ये हो गया पहला आपका एग्जाम्पल, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, अभी आपको बस समझना है कि ये चीजें क्या हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हमें देखो किसी भी पोजिशन को फाइंड आउट करने के लिए एटलीस्ट कम से कम, ठीक है, 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एंड देन आफ्टर हियर इज अ वन टेबल, हियर इज अ वन पॉइंट, ठीक है। यहां पर एक पॉइंट है एंड दिस इज अ टेबल, और ये क्या, लड्डू, ठीक है। ये क्या है आपका, लड्डू। अगर कोई टेबल है तो उसके टेबल्स के हम लोग जो साइड होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एज, ठीक है। ये जो साइड होता है इसको हम लोग एज बोलते हैं। ये भी इसका एज होगा, ये भी इसका एज होगा, ठीक है। बट ये इसका लोअर साइड हो गया, ये इसका अपर साइड हो गया, ठीक है। ये दोनों इसको साइड बोल देते हैं, ठीक है। ओके, तो व्हेन वी सेड
व्हाट इज द पोजीशन ऑफ लड्डू इन द टेबल, ठीक है, लड्डू की पोजीशन कहां पर है टेबल में। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे इसको, ठीक है, यू कैन से दैट इट इज नियर अबाउट द लेफ्ट एज ऑफ टेबल, ठीक है, नियर अबाउट है लेफ्ट एज टेबल्स के, ठीक है। You can say that it is too far away from the lower side of the table, ठीक है, lower side जो tables का जो side है lower side, ठीक है, उससे वो काफी दूर है, and it is near about upper side, ठीक है, but we have no specific point to know what is the exact position of laddu on the table, ठीक है, so that if we have measurement just like this position is 2 centimeter and this position is 5 centimeter, ठीक है, then we can say that there is a specific point, ठीक है, मतलब ये क्या है, देखो टू डायमेंशन हमें मिले हैं और by through this we can locate our position, locate the position of laddu, and after that we can say that, ठीक है, what is the exact position of our laddu, ठीक है, we can say that our laddu is positioned on 2 centimeter near to left edge, ठीक है, which is this direction 2 centimeter and 5 centimeter from, ठीक है, from कहां से होगा, from the upper side of table, okay, so there is a 2 points, another there is also 2 points which is pointed to our specific point on the table, ठीक है, on our any subject or things, तो हमें क्या हुआ, यहाँ पर भी 2 पॉइंट्स की जरूरत हो गई, ठीक है। Here is a okay, there is another examples of this chapter, ठीक है, just like here is a sitting plan, examination sitting plan of your class, ठीक है, आपकी क्लास में एक एग्जामिनेशन होने वाले हैं, उसके लिए एक सिटिंग प्लान बनाया गया, ठीक है, इसमें क्या रो, ये जो पोजीशन होंगी, ये जो आड़ी लाइन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस है, these lines are rows, these lines are called rows, ठीक है, here is a row 1, row 2, row 3, row 4, you know all that, ठीक है, you are all facing examination and this types of sitting arrangement is there, ठीक है, and after that the vertical lines, ठीक है, the vertical lines मतलब ये वाली lines जो होंगी ऐसे, ठीक है, these are called columns, ठीक है, and I ask you just like any student A, okay, and the student A is sitting on this place, okay dear students, then how to find out the position of this student, ठीक है, I find out the position of this student by through we can find out the row number, ठीक है, row number कौन से row number पे बैठी हुई है, he is sitting on row number, we can find that R and C, okay, row and column, so he is sitting on which row number 3, and which column number 4, it's a position of student A, here is also a 2 points, ठीक है, देखो अभी तक हमने क्या किया है, पहले जब मैं आपको स्टार्ट में पहले जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था, आई विल टेल यू द वी हैव 3 पॉइंट्स, ठीक है, 3 एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है, 1 एक्सिस, एक्स एक्सिस इज नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन जो होता है, ठीक है, उसके बाद होती है एक और जो एक्सिस होती है वाई एक्सिस, ठीक है, इट्स अ 2 डायमेंशनल डायग्राम, एंड जो एक्स एक्सिस वाला जिसमें केवल था वो था 1 डायमेंशनल डायग्राम, ठीक है, जिसमें केवल लेंथ थी। अब उसके बाद फिर क्या हो गया, जो 2 डायमेंशनल डायग्राम था उसमें लेंथ एंड हाइट दोनों आ गए आपके, ठीक है, अब जैसे कि लेंथ और हाइट दोनों आ गई थी। अब उसके बाद फिर एक और जो डायमेंशनल था 3D डायमेंशनल, जो हम लोग सेल्फ अपने आप को देखते हैं, ठीक है, दीज आर कॉल्ड 3D, तो इसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों चीजें होती हैं, ठीक है, एंड आफ्टर दैट वी कैन से दैट हियर इज ओनली अ 2 पॉइंट्स, मतलब लेंथ है, ये देखो इसकी लेंथ है
और लेंथ ये बोल सकते हैं, ठीक है, ये लेंथ हो गई, ये लेंथ ले लो, किसी को भी लेंथ ले लो, और एक ब्रेथ ले लो आप उसकी, ये चौड़ाई हो गई, ये इसकी लंबाई हो गई, ठीक है। तो ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रेथ हो गई। तो आफ्टर दैट वी हैव टू डायमेंशनल, टू पॉइंट्स आल्सो इज देयर व्हिच इज स्पेसिफिक टू स्पेसिफाई द स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द टेबल और एनी प्लेन, ठीक है। तो प्लेन क्या होता है, सिंपली जो हम लोग जानते हैं, जो प्लेन सा जमीन होता है, ठीक है, प्लेन प्लेसेस होती है, टेबल इज प्लेन, एवरीथिंग इज प्लेन, है ना। तो हमें क्या होती है, यहाँ पर भी हमें जरूरत थी इस प्लेन में, हमें कहां पर है जो ए स्टूडेंट जो है वो बैठा हुआ, उसके लिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि ही इज सिटिंग ऑन दिस प्लेस और शी इज सिटिंग ऑन दिस प्लेस, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो बाय थ्रू this concept finally we are conclude that finding out of the specific position on any plane, ठीक है, जो आइडिया हमें किसी प्लेन में किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट्स को फाइंड आउट करने का आइडिया मिला हमें, ठीक है। दिस आइडिया अराइजेस अ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो यही एक मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है, ठीक है। बाय थ्रू दैट we are studying about the coordinate geometry, ठीक है, branch of mathematics। To finding out the position of any specific point on the plane, that is known as coordinate geometry, which is given by okay, so which is given by mathematician Rene Descartes, okay। So this idea is given by coordinate geometry by through the mathematician Rene Descartes, okay। And now finally we are reaching to our exercise 3.1. First question you can solve by yourself. It is totally based on the टेबल लड्डू कॉन्सेप्ट, ठीक है। टेबल लड्डू कॉन्सेप्ट से आप सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सॉल्व करके बता देता हूं, ठीक है। एंड फाइनली वी आर रीचिंग टू अवर एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 यू कैन सॉल्व बाय योरसेल्फ बाय थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ लड्डू एंड टेबल कॉन्सेप्ट, ठीक है। एंड सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 I can tell you what is the question number 2, just like here is a street plan, ठीक है। ये क्या है आपका स्ट्रीट प्लान है, स्ट्रीट प्लान, ओके। तो व्हाट इज अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स व्हिच इज क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ सिटी, ठीक है। एक सिटी है, उसमें 2 मेन रोड्स हैं, एक नॉर्थ साउथ में और एक वेस्ट ईस्ट है, जो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं कहां पे, सेंटर पे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट दिस 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन मैंने ऑलरेडी बना रखा है आपके यहाँ पे। ऑल अदर स्ट्रीट्स ऑफ सिटी रन पैरेलल टू दिस रोड्स आर 200 मीटर अपार्ट, ठीक है। जितने भी सिटी के जो अनदर रोड्स हैं वो सभी एक दूसरे के पैरेलल से बोल रहे हैं और 200 मीटर के डिस्टेंस में है, मतलब कि क्या, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर है। जितने भी यहाँ पे ये डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और ये भी जो डिस्टेंस है इट इज आल्सो 200 मीटर अपार्ट, ठीक है। 200 मीटर अपार्ट में यहाँ पे पोजीशन है, यहाँ पे बोल रहा है। एंड आफ्टर दैट योर नोटबुक रिप्रेजेंट द रोड, स्ट्रीट एंड सिंगल लाइन, ठीक है। नोटबुक रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। देन each cross street referred to following manner if the second street running in north south direction, ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रनिंग कर रहा है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में स्ट्रीट नंबर 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इस डायरेक्शन में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो स्ट्रीट्स हैं उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया 1 2 3 4 5, ठीक है। एंड जो स्ट्रीट्स है जो वेस्ट से ईस्ट की ओर डायरेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो दीज आर 1 2
3 4 एंड 5, ठीक है। ये मैं अरेंज कर देता हूँ तो 2 मिनट के लिए। ये डायरेक्शन हो गया आपके, ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। एंड क्या बोला यहाँ पे, इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है, सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, रनिंग मतलब जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में यहाँ पे, ठीक है। एंड फिफ्थ इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, जो फिफ्थ स्ट्रीट है जो ईस्ट वेस्ट में जा रहा है, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट, जो भी तो बोल सकते हैं यहाँ पे, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है पूरा, ठीक है। यूजिंग वेस्ट डायरेक्शन मीट द सम क्रॉसिंग, देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट, ठीक है। तो ये क्या है, ये सेकेंड स्ट्रीट है और ये फिफ्थ स्ट्रीट है जो एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, ये बोला गया ये इसका मीट पॉइंट है 25, ठीक है। ये पहला पोजीशन हमें मिल गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देन हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड टू एस 4 3, मतलब क्या हो गया, पहले हमने जो यहाँ पे 2 लिया था वो यहाँ से लिया था, ठीक है, और अभी हम लोग को क्या बोल रहा है 4 एंड 3, मतलब 4 इस लाइन पे 4 एंड 3 जो है वो इस लाइन पे, मतलब 3 4 आपका ये वाला पोजीशन आ गया, ठीक है, 4 एंड 3। कितने स्ट्रीट्स यहाँ से रेफर कर रहे हैं, हाउ मेनी क्रॉस, ठीक है। तो हियर इज 4 स्ट्रीट्स, मतलब यहाँ पे स्ट्रीट 1, मतलब यहाँ से बोल सकते हैं कि यहाँ से 4 रोड्स जो है वो अलग अलग डायरेक्शंस में जाती हैं, ठीक है। हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड टू एज 3 4, अब उसके बाद फिर बोला हुआ है 3 4 के लिए, 3 4 3 मतलब कि क्या, इस डायरेक्शन पे 3, ये वाला 3 एंड 4, और ये हो गया आपका 4, मतलब कि ये पोजीशन को भूला गया आपका 3 4 डायरेक्शन। फाइनली वी आर फाइंड आउट आवर सॉल्यूशन, ठीक है। तो दिस कैन बी सॉल्व्ड आउट बाय आवर कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रीट प्लान, ठीक है। दिस कैन बी सॉर्ट आउट एंड नेक्स्ट डे वी विल फाइंड आउट एक्सरसाइज 3.2 एंड विल डिस्कस अबाउट कार्टेशियन प्लान। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी इजीली, ठीक है, कोशिश करिए समझने की, ये बहुत ही आसान चैप्टर है एंड इट्स स्कोरिंग चैप्टर आल्सो इन योर क्लास 10। थैंक यू क्लास।